Hello all my dear students of class 9. How are you all? Hope you all are fine. And sorry for the late videos. Actually my phone has some problems, so it's not working well. That was the reason. But today onwards we'll regular in our videos. Okay? And one more thing. This is the last video of this poem. From my next video, means tomorrow onwards, we'll start from the new chapter. So today it will going to be finished. So start. And remember, all these questions, whatever I have choose for the today's video, it is very important, and all of them कभी ना कभी ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैड रिपीटेड इन द एग्ज़ाम्स इन योर इन दिल्ली बोर्ड एग्ज़ाम्स, इन लोकल एग्ज़ाम्स, और दे आर वेरी रेलिवेंट फॉर यू. सो दीज ऑल आर द सिलेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर्स. So please listen carefully, and those you find difficult, just note down in your copy with the date and the subject and the writer name. So this is the last series of this chapter. Today we'll finish it, and from tomorrow onwards we'll start new chapter. So start. Short answers questions from The Road Not Taken, written by Robert Frost. The question is discuss, and one more thing, don't go, if you find anywhere the question series numbers, don't go through it. Whenever you will write in your copy, just put your own serial number, 1 2 3 whatever. So number 1, discuss the significance of the title The Road Not Taken. Significance का meaning क्या होता है? The meaning of the significance is important. Significance is important. Discuss the significance of the title The Road Not Taken. ये जो टाइटल है Road Not Taken, इसकी क्या महत्ता है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? So the answer is it depicts the feeling of regret. And one more thing students, when I explain the answers and the questions, it means ये सिर्फ ये तो आपको लगेगा हम भी पढ़ सकते हैं, but no, while reading I will explain you in Hindi. And the second important thing, if I find any difficult word for you, I will explain it in Hindi and in English also, so you can understand the meaning of that particular word. Like I have already explained you significance is important, महत्वपूर्ण. Now it depicts the feeling of regret. After making a choice, he was plagued with the idea of not making the other choice. He regrets not adopting the other cause, the other road, the other choice. Even when he do well, often making a choice, we keep thinking of the games and success which could have been ours if we had taken the other choice. Depicts means होता है वर्णन करना. The feeling of regret means होता है दुख. It depicts the feeling of regret. जो significance है ये बहुत important है. हम यहाँ से start कर सकते हैं. कैसे start कर सकते हैं? यहाँ से भी लिख सकते हैं कि the significance of the title Road Not Taken is very important because the poetry revolves around this title. इट डिपिक्ट्स द फीलिंग ऑफ रिग्रेट. ये वर्णन करती है, डेपिक्ट करती है किसका? फीलिंग का, ऑफ रिग्रेट मीन्स दुख. आफ्टर मेकिंग अ चॉइस, जब वो चॉइस बना लेता है. ही वॉज प्लेग्ड विद द आइडिया ऑफ नॉट मेकिंग द अदर चॉइस. प्लेग्ड मीन्स होता है किस चीज़ से घिर जाना, फैल जाना. ही वॉज प्लेग्ड विद द आइडिया ऑफ नॉट मेकिंग द अदर चॉइस. वो इस आइडिया से घिरा रहता है, इस विचार से घिरा रहता है उसका मस्तिष्क कि मैंने दूसरा वाला चॉइस क्यों नहीं चुना. ही रिग्रेट्स नॉट एडॉप्टिंग द अदर कॉज. उसको रिग्रेट होता है, दुख होता है कि उसने दूसरा वाला जो उसका चॉइस था उसको अडॉप्ट क्यों नहीं किया. इवन व्हेन वी डू वेल ऑफन मेकिंग अ चॉइस वी कीप थिंकिंग ऑफ द गेम्स. यहाँ तक कि इसका मतलब है इवन, यदि हम लोग कोई चॉइस ले लेते हैं, भले वो हमारे लिए कितनी अच्छी हो, उससे हमें कितने भी लाभ हुए हों, हमारे लिए फ़ायदेमंद रही हो, फिर भी हमेशा हमें एक नेक्स्ट चॉइस का दुख रहता है कि काश हमने वो चॉइस ले ली होती, काश हमने वो ऐसा किया होता तो ऐसा होता, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता. बट ऐसा नहीं है. ऑल द वेज आर गुड, ऑल द चॉइसेस आर गुड. इफ़ यू हैव चूजन समथिंग, यू हैव टू गो स्ट्रेट थ्रू दैट वे with the full determination and courage. Now next, describe the two roads that the author finds. Which road does he choose? ये CBSE बोर्ड 10th में 2010 में आया है कि डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए टू रोड्स का जो ऑथर ने चुनी.
और ये जो बेटा हम आपको बता रहे हैं कि ये वाला आंसर था, अभी ये वाला रीड करेंगे, जस्ट कीप द आंसर्स इन योर माइंड एंड व्हेन द क्वेश्चन कम, मिक्स करके लिख सकते हो, कुछ पॉइंट्स इससे लिए कुछ उससे लिए, जो आपको रेलिवेंट लगते हैं, इंपॉर्टेंट लगते हैं, यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योर यू कैन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसने जो चुना उसके बारे में जो फाइंड किया और बताइए, सेम आंसर आएगा वो भी लिख सकते थे। One day the poet comes to a bifurcation in the road and needs to decide which road he should take to continue his journey. One road was a beaten track, many people had walked on it, it was lost in the small shrubs. The other road was grassy and seemed less trodden, being adventurous in nature. The poet chooses the second road, which was greasy and less walked on, and left the first one for some other day. ये इसका आंसर है कि उसने एक रास्ता चुना जो कम लोगों के द्वारा चला गया था। मैनी पीपल हैड वॉकड ऑन इट, उस पर बहुत कम लोग चले थे, एक पे बहुत जो ज़्यादा लोग चले थे। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि क्यों ना मैं दूसरा वाला रास्ता जो कम लोगों के द्वारा चुना गया है मैं उसको चूज़ कर लूँ। द अदर रोड वॉज ग्रासी एंड सीम्ड लेस ट्रॉडन, सीम मीन्स प्रतीत होना, ट्रॉडन मीन्स चला हुआ। सो कम टू द नेक्स्ट, व्हाट वॉज द पोइट्स डायलिमा इन द पोएम द रोड नॉट टेकन। उनका डायलिमा क्या था, उनका जो विचार थे वो क्या थे। द पोएट फेसेस अ डायलिमा डेट एवरी मैन फेसेस इन हिज लाइफ, उनका भी वही था जो और लोगों का होता है। आई ई जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस आई डॉट ई को हम पढ़ते हैं डैट इज़। क्या होता है ये, डैट इज़। The poet faces a dilemma that every man faces in his life, that is making a right decision. One day during the walk, the poet reached bifurcation in the road. Out of the two roads, he had to take only one. He decided to take the second road, which was less frequented. Hence, the road is symbolic of the choice. It is just not possible to make more than one choice and to take both the roads. So, the poet decides to take the road less traveled. यही इसका मीनिंग है कि जो मैंने आपको इसी समरी में बताया था कि ही वॉज अ वन पर्सन, सो ही हैड टू चूज़ वन वे, सो ही हैड मेक हिज चॉइस, ही हैज़ टू वेज टू चूज़। द रोड इज़ द सिंबल ऑफ द पर्सन's लाइफ डिसीजंस, लाइक वी हैव टू टेक डिसीजन इन आवर लाइफ, सेम एज विद द पोएट। वही आपको लिखना है जो आपको मैम ने समरी में बताया था। नेक्स्ट, वाई डिड द पोएट कीप द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे। ये आपको मैंने हिंदी में बताया था कि जो पोएट था जब वो एक रास्ता चूज़ कर लेता है तो वो दूसरे रास्ते को सोचता है कि आई विल ट्रॉडन ऑन या आई विल ट्रैवल ऑन दी नेक्स्ट रोड ऑन एनी अदर डे, कि जो नेक्स्ट रोड है उसमें मैं किसी और दिन चलूँगा। वंस द पोएट हैड टू मेक अ डिसीजन एज टू विच रोड ही शुड ट्रैवल आउट ऑफ टू इन फ्रंट ऑफ हिम, ही एग्जामिन्स बोथ द रोड्स एंड फाइंड्स द अदर रोड लेस ट्रैवल। ही डिडंट वांट टू फॉलो अ बीटन ट्रैक एंड डिसाइड्स टू टेक द अदर रोड एंड कीप द फर्स्ट road for some other day, but somewhere in his mind he is troubled with the thought that he may not be able to do so. तो उसका यही है कि वो जो चुनता है वो यही सोचता है कि चलो इस रास्ते पे चलते हैं, अनोखा रास्ता है, इससे बहुत कम लोगों ने चला है, जो दूसरा रास्ता है उस पर मैं किसी और दिन चलूँगा। Next, what does the choice made by the poet indicates about his personality in the poem The Road Not Taken? Yes, the poet is asking कि what does the choice made by the poet indicates, जो उसने चॉइस की थी वो क्या इंडिकेट कर रही थी अबाउट हिज पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जो उसने चॉइस की थी उससे क्या हमें कुछ इंडिकेशन मिलता है कि वो किस तरह की पर्सनैलिटी के थे। तो दिस लाइन रिवील्स द एडवेंचरस नेचर ऑफ द पोएट। रिवील मीन्स प्रकट होना, कंसील इसका अपोजिट होता है, रिवील कंसील, कंसील मीन्स छुपाना।
तो दिस लाइन रिवील्स द एडवेंचरस नेचर ऑफ द पोएट। उसका जो एडवेंचरस नेचर था, साहसिक स्वभाव था या कुछ नया नया करने का स्वभाव था, वो प्रकट होता है। बिकॉज वैन ही हैड टू टेक अ डिसीजन ऑफ मेकिंग अ चॉइस, क्योंकि जब उसके पास एक ऑप्शन था उसको एक डिसीजन लेने का, ही डिड नॉट टेक द बीटन ट्रैक, जो काफ़ी चला हुआ रास्ता था वो उसने नहीं लिया। ही चूजेज द पाथ विच इज़ नॉट फ्रिक्वेंटेड, उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो फ्रिक्वेंट मीन्स जो ज़्यादा बार, फ्रीक्वेंट मीन्स ऑफन यूज, ऑफन या फ्रीक्वेंट सेम वर्ड है, ऑफन और फ्रीक्वेंट, या फिर हिंदी बोलते हैं प्रायः। तो उसने वो रास्ता नहीं चुना है जो प्रायः लोगों के द्वारा यूज़ किया गया था। ही डिसाइड्स टू लीव द फर्स्ट रोड फॉर सम अदर डे, नोइंग फुली वेल डैट ही विल नॉट गेट अ चांस टू गो बैक टू इट। तब कि वो ये जानता था कि ये रास्ता जो उसने चुना है वो इसको दोबारा इस पर कभी भी इसको फॉलो नहीं कर पाएगा। इवन डैट बाय नोइंग द फैक्ट ही डिसाइड टू गो ऑन द नेक्स्ट वे। Now the next is long. Write a brief note on the theme of Robert Frost poem The Road Not Taken. CBSE Board 2010 repeated question. ब्रीफ नोट दीजिए थीम पर कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो थीम है द रोड नॉट टेकन की, वो क्या है। तो द रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ नोन फॉर राइटिंग पोइट्री विच हैड फिलोसफिकल स्ट्रीक्स। द पोएम द रोड नॉट टेकन इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ मेकिंग अ डिफिकल्ट चॉइस विच हैज़ अ यूनिवर्सल अपील। ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये किस लिए जाने जाते हैं? ही इज़ नोन फॉर राइटिंग पोइट्री। कैसी पोइट्री? विच हैड फिलोसफिकल व्यूज़ भी लिख सकते हैं, जिनके फिलोसफिकल व्यूज़ हैं। फिलोसफिकल मतलब जो हमें सोचने पे मजबूर करे, विचारणीय। द पोएम द रोड नॉट टेकन इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ मेकिंग अ डिफिकल्ट चॉइस। जो पोएम है रोड नॉट टेकन किस पर बेस्ड है? इट बेस्ड ऑन एक थीम है कि थीम ऑफ मेकिंग अ डिफिकल्ट चॉइस विच हैज़ अ यूनिवर्सल अपील, जिसमें यूनिवर्सल अपील है या यूनिवर्सल message है। what message it conveys? Because the poet has related the road to the life of the readers. उन्होंने इस पोइट्री में जो रोड है उसको कविता पढ़ने वाले या जो और लोग हैं, जो इंसान हैं, उनके जीवन से इसको मैच किया है। इट कंसर्न्स मेकिंग द राइट चॉइस, द राइट डिसीजन। रोड इज़ अ सिम्बलिक वर्ड विच स्टैंड्स फॉर अ चॉइस। इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल टू मेक मोर देन वन चॉइस एंड टू टेक बोथ द रोड्स। वी हैव टू मेक वन चॉइस, वी हैव टू टेक वन रोड। वाइल मेकिंग अ चॉइस वी डू कंसीडर ऑल द फैक्टर्स, स्टिल इट इज़ नॉट फूल प्रूफ। कंसीडर जो यहाँ पे वर्ड आया है, कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, कि ये जो सिंबल है किस चीज़ का सिंबल है? हाँ, एक चॉइस का सिंबल है। यहाँ पे रोड जो है वो एक सिंबलिक है। किस चीज़ का सिंबलिक है? उदाहरण है किस चीज़ का? हमारे जीवन में। यहाँ पे जो दो रोड है इसका मतलब हमारे जीवन में जो दो चॉइसेस होती हैं, एंड जो वो दो रोड नहीं चुन पाता है इसका मतलब हमारे पास भी दो चॉइसेस होती हैं जीवन में, जिनमें से हमें एक चुननी होती है। और अगर हम सही नहीं चुनते हैं, गलत चुनते हैं, तो हमें उसका जीवन पर रिग्रेट रहता है, दुख रहता है। तो दिस पोएम हैज़ अ यूनिवर्सल अपील और अ मैसेज. So the element of regret remains, which takes away our contentment. This is the great tragedy of life. कंटेंटमेंट, ये जो यहाँ पे वर्ड आया रिग्रेट मीन्स दुख, विच टेक्स आर कंटेंटमेंट, जो हमारा जो प्रॉमिस होता है, वादा होता है, हमको उससे दूर ले जाता है। हम अपने ही प्रॉमिस से, अपने ही कंटेंटमेंट से दुखी हो जाते हैं अगर हम जीवन में सक्सेस नहीं पाते हैं। तो हम जीवन में सक्सेस कब नहीं पाते हैं? अपने ओन थॉट से। हमने क्या कहा था? यू शुड बी करेजियस while following any path, because every path has some difficulties and everybody has to face them with the full of courage. ये भी आप लिख सकते हैं जो मैम अभी बोल रही हैं कि everybody in his life has many difficulties but the real man is who? कौन होता है? Who? The person who face it with the determination and courage. आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पैरा चेंज करके लिखिएगा इसको। Now the question number 7 long. Why did the poet doubt his coming back on the same intersection in life? CBSE 2010. ये जो क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है कि ये उनको डाउट होता है कि इस दो रास्ते पर दोबारा नहीं आएंगे। आप सब कुछ पैसा ही लिख सकते हैं, बट हमें ये यहाँ पे जो मेन आंसर है जो पूछा गया कि इनका डाउट क्यों होता है, तो वो हम इसमें देखेंगे कि दिस पोएम इज़ अबाउट चॉइसेस, डिसीजंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। अभी जो दो लाइनें आई हैं, फर्स्ट लाइन्स आई हैं जो दो यहाँ पर, कि दिस पोएम इज़ अबाउट चॉइसेस, कि जो पोएम है चॉइसेस की, आप ये इसके किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं। कुछ कॉमन लाइन, एक पेज लीजिएगा, कुछ कॉमन लाइन बनाइएगा
जो आप किसी भी क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं. जैसे दिस पोएम हैज़ अ यूनिवर्सल अपील. द पोएट वांट्स टू गिव अस मैसेज इन दिस पोएम. दिस पोएम इज़ अबाउट चॉइसेस, डिसीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस. कॉन्सिक्वेंसेस का मीनिंग होता है परिणाम, रिजल्ट. एंड वन हैज़ टू मूव ऑन द वे ही हैड चूज़. हमें उस रास्ते पे चलना पड़ता है जो हमने चूज़ किया है. वी कांट गो बैक like the poet has chosen a way and he can't move on the next road. तो जैसे कि पोएम भी इसमें चुनता है एक रास्ता, वो दूसरी रोड पे नहीं जा सकता. हाँ, वही सोचता ज़रूर है, बट इट वॉज हिज साइकोलॉजिकल व्यूज़. वो उसके साइकोलॉजिकल होते कि हाँ हम दोबारा आ जाएंगे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो बैक ऑन द सेम वे आफ्टरवर्ड्स. क्लियर. कुछ एक पेज लीजिएगा, उसमें कुछ कॉमन लाइंस डालिएगा, लिखिएगा और हेडिंग डालिएगा कॉमन लाइंस. कॉमन लाइंस का मतलब कुछ कॉमन लाइंस जो आप हर आंसर में ऐड करके अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं. जैसे दिस पोएम इज़ अबाउट चॉइसेस, डिसीजंस, कॉन्सिक्वेंसेस, और जो मैंने भी आपको पहले बताई. लॉन्ग आंसर एंड क्वेश्चंस. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम. इसकी थीम क्या है. तो आंसर इज़ द रिग्रेट इन लाइफ व्हेन वी डू नॉट मेक द राइट डिसीजन. दिस इज़ द थीम ऑफ द पोएम. क्या थीम है कि हमें वी हैव टू फेस रिग्रेट. हमें फिर रिग्रेट को, दुख को फेस करना पड़ता है इन लाइफ. कब. व्हेन वी डू नॉट मेक द राइट डिसीजन. लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्ट डिसीजंस. जीवन किससे भरा हुआ है. चैलेंजेस से, मुश्किल निर्णयों से. बट वॉट वी हैव टू मेड ऑन independent decisions and the decision will make our future depends on it, our success depend on it. हमारा सक्सेस और जीवन उन निर्णयों पे डिपेंड करता है which he had taken earlier, जो हमने पहले ले चुके होते हैं. when even this happens and we make a choice out of many or two, then the choices or choice not made keeps haunting us, making us ponder means होता है विचार करना. what could have happened if we had made that choice which we did not, if we had taken that road which we did not take. वही है कि हमें एक रास्ता चुनना पड़ता है, हम उस रास्ते पर वापस नहीं जा सकते. So I think there are 3 or 4 long questions we have done, and short. This is the last video of this from this chapter, and from tomorrow onwards we'll start new chapter. Note down now take a copy and note down all the important parts